Ignited Minds Tutorials recently released an educational video covering the crucial topics of land, soil, water, natural vegetation, and wildlife resources, specifically tailored for Class 8 CBSE students. In this comprehensive knowledge explanation article, we delve into these important spheres. Starting with land, it plays a significant role in providing space for human activities, agriculture, and habitat for wildlife. Soil, a vital resource, supports plant growth by providing nutrients and anchoring roots. Understanding soil erosion, its preservation, and ways to enhance soil fertility are vital aspects covered in the video. Water, an invaluable resource for all living beings, receives particular attention. The video covers the importance of water conservation, ways to prevent water pollution, and various sources of freshwater reserves. Moreover, the video explores the significance of natural vegetation, highlighting its role in maintaining ecological balance, preventing soil erosion, and providing shelter to diverse wildlife. The classification of natural vegetation into forests, grasslands, and shrubs is explained, along with their importance. Lastly, the topic of wildlife resources delves into the importance of conserving and protecting flora and fauna. It emphasizes the need to establish national parks and sanctuaries to preserve endangered species and their natural habitats. Ignited Minds Tutorials video provides a concise and engaging explanation of land, soil, water, natural vegetation, and wildlife resources, catering specifically to Class 8 CBSE students, fostering a deeper understanding and appreciation for these vital elements of our environment. Okay, so Bachcha Party, we'll start with this chapter in geography, which is about land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. Okay, अभी ये जो resources होते हैं ये होते क्या हैं? What are these basically? What are resources? बोलो 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 बोलो, अरे जल्दी बोलना है भाई साहब. What are resources? Things that we need to survive. Okay, things that we need to survive. Things that we need to survive. Okay, और क्या हो जाएगा बोलो? What else? Things that we need to survive. What else? जो हमारे जीवन के लिए बहुत essential हैं, ठीक है? Things that we need to survive. They are obviously known as resources. What else can we say about resources? Resources मतलब और क्या? हाँ? We can find it in nature. ज़रूरी नहीं है सब नेचर में फाइंड हो, फिर भी तो ये हमको नेचर से मिलते हैं कुछ, ठीक है. ओके, हम यहाँ पे जो रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, लेट्स से लैंड हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ये सब तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है. आप बोलेंगे चलिए लैंड समझ में आता है, या तो हम लैंड पे एग्रीकल्चर करते हैं, या तो हाउस बनाते हैं, या तो रोड्स बनाते हैं, या तो रेलवेज़ बनाते हैं, जो सब हम यूज़ करते हैं, ठीक है. सॉइल we use it for agriculture purposes, ठीक है. Okay, water we use it for various purposes, right from agriculture till our domestic use to industrial use, etc etc. Natural vegetation मतलब पेड़ पौधे, ये भी हमारे लिए बहुत important है, ठीक है. And wildlife, what is why is wildlife important for us? हमारे लिए wildlife क्यों important है? And why is it a resource for us? हमारे नेचर में सारे बैलेंसेस जो हैं वो तब तक रहेंगे जब तक हम उनको मेंटेन करेंगे, बैलेंसेस, ठीक है. अगर हमारा जो पूरा वेब है, ठीक है, मतलब पूरा जो इकोसिस्टम है, उसमें से अगर एक भी स्पीशी लुप्त हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है, तो उसका असर सब पे आता है, ठीक है. इवन इफ वन स्पीशी गोज एक्सटिंक्ट देन द एंटायर इकोसिस्टम इज इम्पैक्टेड. फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर देखेंगे आप, देखो लेट्स से अगर हम बोलें कि भाई इंसेक्ट्स हैं, ठीक है. इंसेक्ट्स को कौन खाता है भाई साहब? फ्रॉग, ठीक है. फ्रॉग को कौन खाता है भाई साहब? स्नेक, ठीक है. सो व्हाट विल हैपन, अगर हमने सारे इंसेक्ट्स को मार दिए तो क्या हो जाएगा? फ्रॉग को खाने को कुछ नहीं रहेगा, तो ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है. ओके, अगर हमने सारे फ्रॉग्स को मार दिया, अगेन क्या हो जाएगा? इंसेक्ट्स की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है. ओके, सो स्पीशीज़ में से कोई भी एक अगर गायब हो जाता है या वो एक्सटेंट हो जाता है, इट विल बिकम अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस, ठीक है. सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पूरे डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करके रखें, ठीक है.
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए बस अब एक एक करके पढ़ेंगे अपन। लैंड, सॉइल, ठीक है, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये क्या क्या हैं, ठीक है, व्हाट आर दीज बेसिकली, ठीक है। तो लैंड, सॉइल, वाटर, लैंड हो गया, सॉइल हो गया, ठीक है, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ठीक है, आर एक्सट्रीमली वाइटल रिसोर्सेज फॉर एनी कंट्री, किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दीज आर एक्सट्रीमली वाइटल, इंपॉर्टेंट, ठीक है। लैंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, लैंड कवर्स ओनली 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑन द अर्थ सर्फेस, बाकी 70% भाई साहब किससे कवर्ड है, वाटर से, ठीक है। 30% इज लैंड एंड बाकी 70% इज बेसिकली वॉट, वाटर इन अर्थ, ठीक है। नॉट ऑल द अवेलेबल लैंड इज इनहेबिटेड बाई ह्यूमन्स, तो सारे जो लैंड अवेलेबल है 30% में भी सारा लैंड हमको अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव नॉन अवेलेबल लैंड किसको बोलेंगे हम, जैसे माउंटेन्स हो गए, है ना, माउंटेन्स हो गए, और हाँ डेजर्ट्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, डेजर्ट्स हो गए, और हाँ जंगल्स हो गए, जंगल्स को तो हम हाँ, फिर सी शोर, ठीक है, ये भी, ये सारे बहुत सारे ऐसे लैंड एरियाज हैं जिन पे हम रह नहीं सकते, खेती बाड़ी नहीं कर सकते, कोई भी यूज़ में हम इसको नहीं ला सकते, ठीक है। सो नॉट ऑल वे, तो इसमें भी 30% में भी काफ़ी सारा कमती हो जाएगा। ये टोटल लैंड सरफेस है, लेकिन क्या उस सारे लैंड सरफेस पे अपन घर बना सकते हैं या खेती बाड़ी कर सकते हैं, तो आंसर इज नो। सो ऑल द मोर डिक्रीज है हमारा लैंड सरफेस, हमारे लिए ऑल द मोर कम हो जाएगा। प्लेसेस विच आर स्पेयर्सली पॉपुलेटेड आर द हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स, माउंटेन्स एंड लो लाइंग एरियाज, तो ऐसे डेजर्ट्स जो हॉट डेजर्ट्स हैं, ठीक है, हॉट डेजर्ट्स मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी, जैसे राजस्थान हो गया आपका, कोल्ड डेजर्ट मतलब जैसे लद्दाख वगैरह जैसे रीजन हो गए, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर्स बहुत ठंडे हैं लेकिन कोल्ड डेजर्ट है, पानी नहीं है, ठीक है। एंड लो लाइंग एरियाज, बहुत लो लाइंग एरियाज जो होते हैं, ठीक है, दीज एरियाज आर स्पेयर्सली पॉपुलेटेड, स्पेयर्सली पॉपुलेटेड मतलब ज़्यादा इसमें लोग नहीं रहते हैं, नहीं रह सकते, लाइफ सपोर्ट नहीं हो सकता, ठीक है, स्पेयर्सली पॉपुलेटेड बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस, बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस है जिसके वजह से लाइफ का सपोर्ट होना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। ओके, अनइवन एंड रग्ड सरफेस ऑफ द अर्थ, अनइवन मतलब ऊबड़ खाबड़ सरफेस है, तो मतलब तकलीफ है, ठीक है, सर्वाइव करना तकलीफ है। प्लेन्स एंड रिवर वैलीज आर थिकली और डेंसली पॉपुलेटेड एज लैंड इज सुटेबल फॉर कल्टिवेशन, तो जितने भी प्लेन एरियाज होते हैं, रिवर वैलीज होते हैं जहाँ पे आप कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, वो अच्छे खासे पॉपुलेटेड होते हैं, दे आर डेंसली पॉपुलेटेड, ठीक है। ओके, लैंड यूज, लैंड यूज इज, तो लैंड यूज इज द यूज ऑफ लैंड फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज, तो हम लैंड को किस किस चीज़ों में यूज करते हैं, ठीक है, तो आपके बहुत सारे यूजेस होते हैं लैंड के, तो वन ऑफ द लैंड यूजेस इज व्हाट, ऑब्वियसली वन ऑफ द लैंड यूजेस इज फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज फॉर बिल्डिंग हाउसेस, हम रहने की जगह बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, फॉरेस्ट्री भी करते हैं, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, ठीक है, एंड माइनिंग, काफ़ी अलग अलग चीज़ों से हम लैंड को यूज़ करते हैं, ठीक है। Is this clear? Okay. Some important factors which determine the pattern of land use are topography. Now what is topography? Topography होता है मतलब कैसा पहाड़ है कि प्लेन है, लैंड को जो हम यूज़ करने वाले हैं किस टाइप का लैंड है, जैसे प्लेन एरियाज़ में अलग तरीके का क्रॉप कल्टीवेशन होता है, आपने देखा रहेगा टी जो होता है वो दार्जिलिंग के एरिया में होता है, मतलब वहाँ पे कैसा है, मतलब टी के कल्टीवेशन में ठहरा हुआ पानी नहीं चलेगा, पानी फ्लोइंग चाहिए, ठीक है, पानी तो चाहिए लेकिन वो फ्लो चाहिए, तो इसीलिए वो पहाड़ों में होता है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग पर्पसेस के लिए हम लैंड को यूज़ करते हैं, ठीक है। टोपोग्राफी मतलब लैंड का स्ट्रक्चर कैसा है, माउंटेनियस है, रॉकी है, भाई साहब आपका हिल एरिया है, प्लेन एरिया है, व्हाट टाइप ऑफ लैंड इज इट, ठीक है, टोपोग्राफी हो गया। क्लाइमेट, भाई साहब उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके का क्लाइमेट होता है और अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग प्रोडक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, कितना वाटर अवेलेबल है बच्चा पार्टी, ठीक है, हाउ मच ऑफ वाटर इज अवेलेबिलिटी एंड मिनरल्स क्या क्या है, ठीक है, व्हाट आर द मिनरल्स अवेलेबल। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप लैंड कैन बी क्लासिफाइड, जो हम लैंड ओन करते हैं तो उसका कैसे क्लासिफिकेशन है भाई साहब, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड, ठीक है। तो ओनरशिप के हिसाब से लैंड के दो विभाजन है, प्राइवेट एंड कम्युनिटी लैंड। अभी देखो जैसे प्राइवेट लैंड कैसा हो जाएगा, आपकी बिल्डिंग सोच लीजिए, ठीक है, आपकी बिल्डिंग में आप जिसमें रहते हैं, जिस फ्लैट में रहते हैं वो आपका प्राइवेट लैंड हो गया, और कम्युनिटी लैंड मतलब जो आपका पार्किंग, मतलब पार्किंग नहीं बोलेंगे हम, जो आपका बाकी का एरिया है आपकी बिल्डिंग में वो कम्युनिटी लैंड हो गया। जैसे ये रोड है, देखो ये रोड कम्युनिटी लैंड है,
इस रोड पे तुम भी चल सकते हो, मैं भी चल सकता हूँ, सब लोग जा सकते हैं। जो सब लोग व्यवहार कर सके जिस चीज़ को, उसको अपन कम्युनिटी लैंड बोलते हैं। इट इज़ फॉर ऑल, गवर्नमेंट का लैंड बेसिकली। रोड्स हो गए, रेलवेज हो गए, ब्रिजेस हो गए, ये सारे जो भी हैं वो कम्युनिटी लैंड्स हैं। दीज आर नॉट प्राइवेट लैंड्स, ठीक है, ओके। लैंड इज ओन्ड बाई एनी इंडिविजुअल, जो अगर कोई लैंड को ओन करता है, उस जो एक टुकड़ा जमीन का है, उसको अपन प्राइवेट लैंड बोलते हैं, ठीक है, ओके। लैंड इज ओन्ड बाय अ कम्युनिटी ऑफ पीपल इज नोन एज कम्युनिटी लैंड, ठीक है। पीपल यूज कम्युनिटी लैंड फॉर कॉमन यूजेस सच एज कलेक्टिंग फॉडर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स। कभी कभी कम्युनिटी लैंड मतलब एक पूरा समूह रहता है जंगल में, ठीक है, तो वो उनका कम्युनिटी लैंड है। वो सब गांव वाले एक जैसे तरह रहते हैं, तो सब लोग इन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। नेचुरल चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे, हर्ब्स मिलता है, काफ़ी सारे मेडिसिन मिलते हैं। दिस इज द रीजन दैट कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो नोन एज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। इसके लिए अपन इसको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज बोलेंगे। इट इज़ अवेलेबल टू यूज फॉर ऑल, ठीक है, ओके। Deterioration of land and its conservation. Vast changes in land use patterns have led to the deterioration of the quality of land. बहुत सालों से हम जिस तरह से लैंड को यूज़ करते आए हैं, काफ़ी सारा डेट्यूरेशन हुआ है। डेट्यूरेशन मतलब ख़राब हुआ है, ठीक है। हमने बहुत ही इररिस्पॉन्सिबली लैंड को यूज़ किया है, जिसके चलते उसकी क्वालिटी गिरी है। लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, ठीक है, काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रहे हैं। एंड द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर हैव लेड टू लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड का डिग्रेडेशन होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रहा है तो। लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन। लैंडस्लाइड्स होते हैं, सॉइल इरोजन होता है, डेजर्टिफिकेशन होता है, ठीक है। इन सब मतलब लैंडस्लाइड्स कैसे होते हैं, अभी जैसे बारिश का मौसम है, देखो पहाड़ों में क्या होता है, जैसे काफ़ी सारा पानी अंदर चला जाता है रॉक्स के, तो रॉक्स ढीले पड़ जाते हैं, तो लैंडस्लाइड हो गया वैसा, ठीक है। मतलब एक बड़ा सा टुकड़ा लैंड का नीचे आ जाता है। लैंडस्लाइड्स आर वेरी कॉमन ड्यूरिंग रेनी सीजन इन माउंटेनियस एरियाज। कभी कभी बहुत बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जैसे आपने सुना रहेगा केदारनाथ बद्रीनाथ के टाइम पे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लैंडस्लाइड। बहुत बड़ा समूचा जो है नीचे आ जाता है, क्योंकि पानी गिर रहा है, अंदर ही अंदर सोख हो रहा है, तो वो ढीला होता जा रहा है। वो रॉक पूरा का पूरा जैसे नीचे आएगा, एक रॉक नीचे आएगा, फिर वो उसके साथ अपने साथ पूरे मलबे को नीचे लेता आएगा, वो बढ़ता ही जाएगा, वो क्राउड बढ़ता जाएगा, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड लैंडस्लाइड्स, ठीक है। तो ये लैंडस्लाइड्स होते हैं, ठीक है। और क्या है भाई साहब, सॉइल इरोजन। ये आपका जो बरसात होती है तो टॉप लेयर ऑफ सॉइल गेट्स वॉश्ड अवे, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं सॉइल इरोजन। विंड से भी होता है, ठीक है, ये तमाम चीज़ों से होता है। डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट्स बढ़ते रहते हैं। आप देखोगे रास्ते में, अगर आप देखोगे कभी कभी वो ट्रक वाले आकर वो बालू डालकर जाते हैं, रेती डालकर जाते हैं, वो रेती अपने आप देखो बढ़ता रहता है उसका एरिया, है ना, वो फैलता ही जाएगा। तो डेजर्टिफिकेशन, जहाँ पे भी डेजर्ट होगा उसका एरिया बढ़ता ही जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। लैंडस्लाइड्स कैन डैमेज प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ्स। लैंडस्लाइड्स बहुत खतरनाक होते हैं और ये अचानक भयानक से आते हैं और इसमें सब लोग बह जाते हैं, बाढ़ की तरह होता है ये। अ मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स, डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप इज नोन एज लैंडस्लाइड। तो समझ लो ये कोई पहाड़ है, यहाँ पे भाई साहब घर हैं, ठीक है, लेकिन अचानक से ये भाई साहब पहाड़ में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, रॉक्स ढीले पड़ गए, तो एक रॉक पलटा, दूसरा पलटा, तीसरा पलटा, ऐसे करते करते एक बहुत बड़ा ऐसे आ जाएगा नीचे। और जितना भी भाई साहब नीचे घर और रहेगा, मेरे को एक्सप्लेन तो कर लेने दे भाई, ठीक है। तो नीचे जितना भी घर और रहेगा दैट ऑल गेट वॉश्ड अवे, ठीक है। सो ये आपके बड़े बड़े लैंडस्लाइड्स होते हैं और ये स्पेशली माउंटेनियस एरियाज में होते हैं। वैलीज में आपके घर रहते हैं जो बह जाते हैं। स्पेस दोनों भी बढ़ता है, सैंड के पार्टिकल्स नहीं, स्पेस बढ़ता रहता है, ठीक है। डेजर्टिफिकेशन में मतलब समझ लीजिए डेजर्ट है, डेजर्ट एरिया बढ़ता ही रहेगा, ये धीरे 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 बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि सैंड के पार्टिकल्स फैलते ही रहेंगे, ठीक है। ओके, डेब्रिस इन अर्थ डाउन अ स्लोप इज नोन एज लैंडस्लाइड। इट जनरली अकर्स बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। देखो अभी नेचुरल वेजिटेशन के साथ क्या है, समझ लो ये पहाड़ है कोई, और ये जो पेड़ होते हैं, ये पेड़ों की जड़ें जो होती हैं वो रॉक्स को होल्ड करके रखती हैं, ठीक है। आप देखोगे ये खाड़ी में जो पेड़ हैं उनको काटना मना है, मैनग्रोव्स को काटना मना है। क्यों? क्योंकि वो लैंड को पकड़ के रखते हैं। अगर हमने उन मैनग्रोव्स को काट दिया तो सी भाई साहब आगे आता ही रहेगा, सी आगे आता रहेगा और लैंड कब का कटता रहेगा, आपके लिए अवेलेबिलिटी कम होती रहेगी। इसीलिए मैनग्रोव्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैनग्रोव्स जो होते हैं वो जंगली पेड़ हैं, लेकिन उनके जो जड़ें हैं वो बहुत नीचे तक जाती हैं। और ये जड़ें क्या करती हैं भाई साहब, अपने एक सीमेंट का काम करती हैं। दे बेसिकली प्ले द रोल ऑफ अ सीमेंट। वो जो मट्टी है उसको पकड़ के रखती है। अगर हमने मैनग्रोव्स को काट दिया तो मट्टी जो है ढीला पड़ जाएगा और पानी उसको काटता रहेगा, तो आपका भाई साहब लैंड कटता ही रहेगा। ऐसा ही कुछ पहाड़ों में भी होता है,
नेचुरल वेजिटेशन अगर ख़राब हो जाता है, समझ लो आग लग गया, आग लगा दी गई, या इस सारे पेड़ पौधों को काट दिया गया, तभी क्या होगा भाई साहब, ये सॉइल जो है ढीला पड़ जाएगा, उसमें बरसात होगी और पूरा मलबा नीचे आ जाएगा, एंड दैट इज़ गोइंग टू कॉज अ ह्यूज एक्सीडेंट। ठीक है, इस तरह से लैंडस्लाइड्स होते हैं। इट जनरली अकर्स बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। अगर नेचुरल वेजिटेशन का डिस्ट्रक्शन होता है तो जनरली पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड्स होते हैं। लैंडस्लाइड्स कैन बी प्रिवेंटेड इन द फॉलोइंग वेज। अपन कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं बच्चा पार्टी, हाउ कैन बी बेसिकली प्रिवेंट देम? सो लैंडस्लाइड्स कैन बी प्रिवेंटेड इन द फॉलोइंग वेज। पहला आपका क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। तो बहुत जगहों पे देखोगे, जैसे तुम अगर CBD बेलापुर से कभी गए होगे हाईवे से, तो आप देखोगे पहाड़ों के उधर नेट लगा हुआ है। ठीक है, वो नेट क्यों लगा होता है? क्योंकि वो हाईवे, मेजर हाईवे, ट्रक्स, गाड़ियाँ सब जा रही हैं हर समय। ये बरसात के मौसम में लैंडस्लाइड होने के चांसेस हैं, तो ये पूरा मलबा नीचे रास्ते पे ना आ जाए और बड़ा एक्सीडेंट ना हो जाए, इसके लिए है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप बड़े बड़े वॉल्स बना देते हो तो ये लैंडस्लाइड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तुम्हारे क्वेश्चंस भी तुम्हारी तरह हैं, एकदम विदाउट सेंस। अरे भाई साहब, रॉक्स ऑलरेडी है वहाँ पे, रॉक्स आर ऑलरेडी देयर। ये रॉक्स ऑलरेडी हैं। ये जो मोटी जाली होती है, इसको ऐसे ठोक के, ये कीलों से ठोक दिया जाता है इसको। ये जाली जो है तो एक नेट का प्रोविजन कर रही है ना, मतलब बांध के रख रही है उसको आने नहीं दे रही है। तुम अगर 2.5 किलो मतलब 3-4 किलो का सब्जी ला रहे हो, तो अगर ऐसे लेकर आओगे भाई साहब, गिरने के चांसेस होगे कि नहीं? जैसे तुमने इसको बैग में ले लिया तो गिरेगा नहीं वो। तो इट्स लाइक बैगिंग, यहाँ पे पैकेजिंग हो रही है इसकी। ये पूरा ऐसा चित्रा बितरा है। अगर हमने इसको पूरा मोटा जाली कर दिया तो ये बाहर नहीं आएगा ना, एक फेंस की तरह हो गया, उसको होल्ड करके रखेगा। अगर तुम सब्जी ला रहे हो बाजार से और ऐसे लेकर आ रहे हो भाई साहब, पता चला भाई साहब आलू गिर रहा है, टमाटर गिर रहा है, कांदा गिर रहा है, ये सब नीचे गिर रहे हैं, मगर बट इफ़ यू कीप इट इन अ बैग, इट्स लाइक पैकिंग इट अप। तो इसी तरह से ये जो पूरा रॉक्स है ये जाली में बंध जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे नहीं आता। ऐसा भी कर सकते हैं, वॉल्स भी लगा सकते हैं, बड़े बड़े वॉल्स अगर हमने कंस्ट्रक्ट कर दिए तो भी आगे नहीं आएगा। ठीक है, ओके। सो कंट्रोल द कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल्स, स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग, इंक्रीज वेजिटेशन कवर। दूसरा तरीका क्या है, इसके ऊपर अगर हम वेजिटेशन कवर को बढ़ाएं, मतलब जो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, वो बढ़ें, क्योंकि प्लांट्स और ट्रीज़ के जो रूट्स हैं ये इनको पकड़ के रखेंगे, ये उनको स्लिप होने नहीं देंगे, दे विल नॉट अलाउ देम टू स्लिप। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? बहुत बढ़िया भाई साहब। कंट्रोल द सरफेस ड्रेनेज वर्क्स टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ लैंड ड्यूरिंग रेनफॉल एंड स्प्रिंग फ्लोज। ठीक है, अभी होता क्या है, ये जो ड्रेनेज होता है, ठीक है, ये जो ड्रेनेज होता है, समझ लो कोई लैंड है, ठीक है, और इसमें से भाई साहब झरना आ रहा है। ठीक है, बरसात में झरना जो होगा उसका पानी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, पानी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा मतलब वो और ज़्यादा सॉइल इरोजन कॉज करेगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कैनल्स बना देंगे ऐसे, ताकि पानी सिर्फ इसमें से ही बहे, सब में से ना बहे। ठीक है, तो कंट्रोल द सरफेस ड्रेनेज वर्क्स टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ लैंड ड्यूरिंग रेनफॉल एंड स्प्रिंग फ्लोज। आपने देखा रहेगा बिल्डिंग्स के ऊपर ये जो ऐसा लगा रहता है, पतरा लगा रहता है, उसके साथ में एक ऐसा पाइप लगा रहता है ना। तो मतलब क्या होता है, पतरे पे जो पानी गिरा ये पाइप से होता हुआ एक जगह, अगर ये पतरे से पानी ऐसे गिरेगा तो पानी बहुत ज़्यादा गिरेगा, लेकिन एक जगह से ही पानी जाए। तो वैसे ही ऐसे स्लोप्स बनाए जा सकते हैं पहाड़ों पे, ताकि पानी भाई साहब एक जगह से ड्रेन आउट हो, ना कि सब जगह से। जितना ज़्यादा पानी ड्रेन आउट होगा उतना ज़्यादा सॉइल इरोजन या रॉक इरोजन होगा, और उतना ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होने के चांसेस हैं। द मोर इज द चांसेस ऑफ लैंडस्लाइड्स। ठीक है, ओके। Soil is a thin and top layer of land where all vegetation grows. Soil is made up of minerals, weathered rocks and organic materials. तो एक thin layer होता है soil, ठीक है, इसमें भाई साहब ये soil है समझ लो, इसमें सारा vegetation इसी में grow होता है, इसमें सारे minerals भी होते हैं, ठीक है, rocks भी होते हैं। weathered rocks मतलब देखो rocks का साइज, हमारा पूरा soil जो है rock से ही बना है। अर्थ पहले एक rock ही था, लेकिन धीरे 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 वेदरिंग होती है। वेदरिंग होती है मतलब वेदर के प्रभाव से ये टूटते जाते हैं, सन के प्रभाव से, बारिश के प्रभाव से, दे कीप ऑन भाई साहब ब्रेकिंग, और ब्रेकिंग होते 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 तो एकदम फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं जब, तो वो सॉइल बन जाएंगे, दे विल बिकम सॉइल। ठीक है, ओके। सो सॉइल इज अ थिन टॉप लेयर ऑफ लैंड वेयर ऑल वेजिटेशन ग्रोज। यहाँ पे सारा वेजिटेशन ग्रो होता है। सॉइल इज मेड अप ऑफ क्या क्या, मिनरल्स, देन वेदर्ड रॉक्स। वेदर्ड रॉक्स मतलब जो टूटे हुए रॉक्स हैं, एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स, इन सब चीज़ों से बना हुआ है। ऑर्गेनिक मटेरियल्स में बहुत सारा कुछ आ जाएगा, गोबर वोबर सब कुछ है ना, प्लांट, एनिमल लाइफ सबसे बना हुआ है।
फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, तो क्या क्या फैक्टर्स हैं भाई साहब? क्लाइमेट के फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे सॉइल जितना ज़्यादा गर्मी होगा रॉक उतना ही ज़्यादा टूटेगा, ठीक है, तो क्लाइमेट फैक्टर्स होते हैं, जितना ज़्यादा बारिश होगा रॉक उतना ही टूटेगा, ठीक है। देन वी हैव नेचर ऑफ पेरेंट रॉक, हर लैंड सरफेस एक पेरेंट रॉक से बनती है, अलग अलग रॉक्स होते हैं, मेटामॉर्फिक, इग्नियस, अलग अलग टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं, वॉल्केनिक रॉक्स होते हैं। तो ये जो रॉक्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि सॉइल क्या बनता है, ठीक है। टोपोग्राफी मतलब लैंड फॉर्मेशन, पहाड़ी एरिया है, प्लेटू एरिया है, वैली एरिया है, रिवर के पास वाला एरिया है या बीच एरिया है। एंड द रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, अभी देखो जैसे आपके जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। ये समझ लो कोई रॉक सरफेस पे आपके जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, तो इनका भी एक, क्योंकि ये मरेंगे और मरेंगे तो सॉइल के अंदर जाएंगे और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल जितना सॉइल में जाएगा उतना ज़्यादा सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ेगा, ठीक है। ओके, दीज फैक्टर्स अफेक्ट द सॉइल इन द फॉलोइंग वेज। तो आपके किस तरह से भाई साहब सॉइल अफेक्ट होता है? देखो, पेरेंट रॉक होता क्या है? द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक डिटरमिन्स द कलर, टेक्सचर, मिनरल कंटेंट एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। तो सॉइल का कलर क्या होता है? जैसे ब्लैक सॉइल होता है, क्लेई सॉइल होता है, ये डिटरमिन करता है। टेक्सचर मतलब उसकी क्वालिटी, आपने क्ले को अगर हाथ में लिया और अगर आपने मिट्टी को हाथ में लिया, यू विल फील डिफरेंट, राइट? सो दिस इज कॉल्ड टेक्सचर, ठीक है। मिनरल कंटेंट, कितना मिनरल्स है, क्या क्या मिनरल्स हैं, जितने ज़्यादा मिनरल्स होंगे जो हमारे काम के होंगे उतना अच्छा। आयरन जैसे आपको मिलता है, वो कहाँ से मिल रहा है? और इससे तो मिल रहा है, अर्थ से तो मिल रहा है। आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सारे ऑलमोस्ट लगभग 95 to 100% जो आपके मिनरल्स हैं वो सब आपको सॉइल से मिलते हैं, ठीक है। ओके, मिनरल कंटेंट एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, क्या क्या है सॉइल के अंदर जो फर्टिलिटी को बढ़ा सकता है, जो आपके उपजाऊता को बढ़ा सकता है, तो ये आपके केमिकल कंटेंट्स होते हैं। तो ये हो गया पेरेंट रॉक से ये सब मिल जाता है। मतलब जो पहले एक रॉक रहेगा, अभी उस रॉक का धीरे 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 डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है, टूट रहा है वो धीरे 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 धीरे, वाटर के वजह से हो, क्लाइमेट के वजह से हो, वेदर के वजह से हो, ह्यूमन इंटरफेरेंस के वजह से हो, एनिमल्स के वजह से हो, प्लांट्स के वजह से हो, तमाम चीज़ों के लिए वैसे वो रॉक टूट रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे समझो अगर आपने फ्रिज में, जैसे आपने देखो कैसे ये फ्रिज में एक बॉटल रखा है आपने, ठीक है, डीप फ्रीजर में रख दिया और बॉटल ऐसा है, देखो ऐसा वाला बॉटल, आप जब ये आइस जम जाएगी ना, तब जब इसको बाहर करोगे ना तो ये ऐसा हो जाएगा और अभी ये सीधा नहीं होने वाला, ठीक है। क्यों बता सकते हैं? क्योंकि आइस, वाटर से जब आइस बनता है तो वो एक्सपैंड होता है, ठीक है, और ये एक्सपेंशन में ये जो नीचे का पार्ट था ये नीचे आ गया है। अब भाई साहब उसको तुम खड़ा नहीं कर सकते, अभी वो बॉटल जो है तो वो खड़ा नहीं होगा। कोई भी बॉटल देखो, बॉटल को खड़ा होने के लिए देखो यहाँ पे जो बीच में एक डिप्रेशन है, अगर इसको मैंने फ्रिज में रख दिया पूरा भर के तो क्या हो जाएगा, ये डिप्रेशन जो है बाहर आ जाएगा। अभी मैं इसके बाद इस बॉटल को ऐसे यूज़ नहीं कर सकता, शायद पानी तो भर लूँ लेकिन भाई साहब उसको रख नहीं सकता ऐसे, उसको लेटा के ही रखना पड़ेगा, ठीक है। सो ये क्यों हुआ है भाई साहब? क्योंकि आपका आइस जो है वो एक्सपैंड हो जाता है, वो वाटर एक्सपैंड हो जाता है। अभी समझो ये रॉक है कोई, ठीक है, ये कोई रॉक है और इस रॉक में कोई क्रैक है, इसमें भाई साहब पानी आ गया, लेट से पानी आया, बरसात का पानी आया, ये पानी अभी लेट से ठंडी के मारे आइस में कन्वर्ट हो रहा है। जब ये आइस में कन्वर्ट होता है तो एक्सपैंड होगा, और जब ये एक्सपैंड होगा तो क्रैक और बढ़ जाएगा, क्रैक विल इंक्रीज, और ऐसे क्रैक होते 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 चीज़ें क्रैक हो जाती है, ठीक है, क्लियर है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स, नेचर ऑफ पेरेंट रॉक, टोपोग्राफी एंड रोल ऑफ ऑर्गेनिक। तो पेरेंट रॉक से हमको ये सब मिल जाता है भाई साहब, क्या क्या है? कलर, टेक्सचर, मिनरल कंटेंट एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। ओके, रिलीफ और फीचर्स सच एज ऑल्टीट्यूड एंड स्लोप। तो भाई साहब क्या रिलीफ फीचर्स हैं? जैसे ये आपका भाई साहब ऑल्टीट्यूड क्या है, स्लोप क्या है, ठीक है, ये सब हो गया आपका रिलीफ फीचर्स। इट डिटरमिन्स द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, ये भाई साहब क्या सॉइल एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है, ये आपके रिलीफ फीचर्स हैं, ठीक है। इट डिटरमिन्स द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। ओके, फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना भाई साहब होता है आपका, हाँ, एनिमल्स एंड प्लांट्स, बेसिकली एनिमल्स एंड प्लांट्स। इट अफेक्ट्स द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके एग्रीकल्चर के लिए। जितना ज़्यादा आपका ऑर्गेनिक मटेरियल सॉइल में होगा उतनी उपजाऊता बढ़ेगी, ठीक है। ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब जैसे एक्सक्रीटा हो गया, हमारा बॉडी वेस्ट, फिर आपके मरे हुए प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये जितना ज़्यादा किसी सॉइल में रहेगा उसका ह्यूमस कंटेंट उतना ज़्यादा रहेगा, और उस ह्यूमस कंटेंट से उस सॉइल की एग्रीकल्चर लाइफ बढ़ेगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसीलिए बोलते हैं ना, देखो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग करो, ताकि हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ऐसे जगह पे डंपिंग करें जहाँ पे फ्यूचर में एग्रीकल्चर कर पाएँ, समझ में आ रहा है।
सब्जी के छिलके, फ्रूट पील्स, मीट, वेस्ट फूड, ह्यूमन वेस्ट, ये गोबर, ये सारी चीज़ें अगर हम सही जगह पे डंपिंग करें तो 4-5 सालों में उस जगह पे बहुत फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट है, इनऑर्गेनिक वेस्ट नहीं है, ठीक है। सो दैट इज़ वन थिंग, फ्लोरा एंड फाउना। तो फ्लोरा एंड फाउना बेसिकली क्या करता है, ह्यूमस को बढ़ाता है। जितने ज़्यादा प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह एक जगह पे मरेंगे, उस सॉइल की फर्टिलिटी उतनी बढ़ेगी, ठीक है, क्लियर है। ओके, क्लाइमेट एंड क्लाइमेट मतलब टेम्परेचर एंड वेदरिंग, क्या टाइप का क्लाइमेट है भाई साहब? क्लाइमेट अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। तो क्लाइमेट से भाई साहब स्पीड बढ़ता है वेदरिंग ऑफ रॉक्स का। वो जैसे मैंने आपको बताया, अभी देखो पानी घुसा था भाई साहब बरसात में, अभी ये पानी यहाँ पे जमा हुआ है, अभी अचानक ठंडी पड़ गई तो बर्फ़ हो गया तो एक्सपैंड किया, मतलब वो क्रैक और ज़्यादा फट गया भाई साहब, ठीक है। तो क्लाइमेट से भी आपका बहुत ज़्यादा वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है। रॉक्स जितने टूटेंगे उतना सॉइल बनेगा, ठीक है, रॉक्स जितने टूटेंगे उतना सॉइल बनेगा, ठीक है। टाइम इट डिटरमिन्स द थिकनेस ऑफ सॉइल, कितना टाइम लगा है, जितना ज़्यादा टाइम लगा रहेगा उतना ज़्यादा सॉइल थिक होगा, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। एक छोटा सा इतना लेयर सॉइल बनने के लिए हज़ारों साल लग जाते हैं, इतना लेयर जिसका हम कोई मतलब तवाज ही नहीं करते हैं, जिसको हम कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं पे करते हैं, उसको बनने के लिए हज़ारों साल लगेंगे, ठीक है। रॉक्स टूटे हैं, टूटने के बाद भाई साहब और टूटे हैं, टूटते फाइन पार्टिकल्स हो गए, तब जाके वो सॉइल बना है, ठीक है, क्लियर है। So soil formation is not a magical process and an overnight process. It's a process which has taken a huge amount of time and we should be respecting it. Because अगर हम इस soil को conserve नहीं करेंगे, soil erosion से soil अगर भागता ही रहेगा, तो ये हम एग्रीकल्चर के लिए कभी यूज़ नहीं कर सकते। तो जैसे अगर आपको किसी सॉइल में एग्रीकल्चर करना है, तो ये बरसात के मौसम में आपको देखना पड़ेगा कि मेरा सॉइल इरोजन ना हो जाए। आप थोड़ा बाहर खड़े रहो, आपको जो वाटर दिखेगा उसमें आपको पूरा मिट्टी घुला हुआ दिखेगा, राइट, कितना सॉइल वो कैरी कर रहा है, मतलब जहाँ से भी आ रहा है वो टॉप से लेयर को लेकर आ रहा है ना, नहीं, ठीक है। तो ये काफ़ी मतलब वहाँ से तो टॉप लेयर चला गया ना भाई साहब। अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो इस सब को ना पेड़ों से घेर देंगे वो, ठीक है, पेड़ों से घेर देंगे। क्यों? इससे क्या होगा भाई साहब, पेड़ जो है तो सॉइल को पकड़े रखेंगे, सॉइल को भागने नहीं देंगे। जब रेन होगा या विंड होगा, इन सब सर्कमस्टांसेस में ज़्यादा लॉस नहीं होगा, सॉइल इरोजन नहीं होगा, ठीक है। सो दैट इज़ वन वे ऑफ प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, ठीक है। ओके, डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। तो आपके डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल भाई साहब क्या क्या होते हैं, फैक्टर्स लीडिंग टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। पहला तो हो गया डिफॉरेस्टेशन, समझ में आता है सबको, ये फॉरेस्ट को काटना, ठीक है। एक हो गया ओवर ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मतलब क्या होता है, हम गाय बछड़ों को जब खाने खिलाने ले जाते हैं तो वो जो घास चरते हैं, वो घास को अगर उखाड़ दिया तो सॉइल एक्सपोज हो जाएगा। अभी ये सॉइल पे पानी गिरे या विंड चले वो उड़ जाएगा। अभी तक क्या था, घास उसको पकड़े हुए था, ठीक है, तो ये अभी सॉइल एक्सपोज हो गया तो अभी ये उड़ जाएगा। तो ओवर ग्रेजिंग अगर हम कराते हैं, बहुत ज़्यादा गाय बच्चों को अगर किसी एक सॉइल पे हम ओवर ग्रेजिंग कराएं तो वहाँ पे सॉइल इरोजन होना ही होना है। फिर लैंडस्लाइड्स, जो मैंने आपको समझाया। रेन वॉश, बहुत ज़्यादा रेन हुआ तो पूरा वॉश आउट हो गया सॉइल। ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। इससे क्या होता है, देखो अगर हम बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, सॉइल में जान चली जाती है, सॉइल धीरे धीरे भाई साहब बेजान होती जाती है, क्योंकि सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मरने लगते हैं, ठीक है, दे स्टार्ट डाइंग। पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स अगर हमने बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ किया, दे विल स्टार्ट डाइंग, ठीक है। देन वी हैव ऑफ कोर्स फ्लड्स। फ्लड्स मतलब जब रेनी सीजन में फ्लड्स होते हैं आपके, इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे हम डेफिनेटली कुछ कर सकते हैं, ठीक है। वी डेफिनेटली कैन डिफॉरेस्टेशन के बारे में कर सकते हैं, ओवर ग्रेजिंग के बारे में यहाँ पे भी कुछ हद तक हम कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अगर हम संभाल लें तो भी आपका सॉइल संभल जाएगा। नींद आ रही है, ठीक है। हाँ, डिग्रेडेशन अभी चैप्टर के शुरुआत में तो समझा है। डिग्रेडेशन मतलब सॉइल लो क्वालिटी में हो जाना, हाई क्वालिटी से लो क्वालिटी में हो जाना। ध्यान बिल्कुल भी नहीं है आपका। डिग्रेडेशन मतलब डिग्रेड हो जाना, ठीक है, आपका मतलब सॉइल का क्वालिटी गिर जाना, इसको डिग्रेडेशन बोलते हैं। सॉइल कैन बी कंजर्व्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। क्या क्या मेथड्स हैं बोलो? मल्चिंग, एन अनकवर्ड पीस ऑफ लैंड इज कवर्ड विद स्ट्रॉ और एनी अदर लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। दिस मेथड हेल्प्स टू रिटेन द मॉइस्चर। अभी समझ लो, आपका कोई सॉइल है, ठीक है, लेट्स से कोई खेती है, गांव में कोई खेती है, ठीक है, इसमें अभी बरसात आएगी या विंड चलेगा तो सॉइल इरोजन होगा। इसको अगर हमने स्ट्रॉ, आप देखोगे ऐसे बहुत सारे जो स्ट्रॉ होते हैं ना, मतलब हम धान काटते हैं तो जब हम काटते हैं उसको, तो जो हमारा दाने हैं वो तो निकाल लिया हमने, बाकी ये हम गाय बछड़ों को खिला देते हैं।
तो थोड़ा बहुत अगर हम इसको ऐसे छिड़क के रखें इस स्ट्रॉ को, तो ये क्या करेगा भाई साहब, मॉइस्चर को रिटेन करके रखेगा, ठीक है। मल्चिंग बोलते हैं हम इसको। एन अनकवर्ड पीस ऑफ लैंड इज कवर्ड विथ स्ट्रॉ और एनी अदर लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। दिस मेथड हेल्प्स द सॉइल टू रिटेन द मॉइस्चर। तो मॉइस्चर को रिटेन करके रखेगा। सॉइल जब मॉइस्चर को रिटेन करके रखता है तो भारी होता है, तो विंड उसको कैरी नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? आप 100 ग्राम मिट्टी उठाइए जो पानी में भीगा हो, सोक्ड, और ऐसा मिट्टी उठाइए जो सूखा हो, कौन सा ज़्यादा भारी लगेगा आपको? ये वाला, है ना। इसने मॉइस्चर को रिटेन करके रखा है। तो अगर स्ट्रॉ को ऐसे फैला के रखेंगे, स्ट्रॉ मॉइस्चर को रिटेन करता है और ये सॉइल क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा, सो दैट इट कैन नॉट ईजिली बी कैरिड अवे बाई विंड और वाटर। जितना ज़्यादा भारी होगा उतना ज़्यादा विंड उसको कैरी नहीं कर पाएगा। अगर सॉइल थुलथुला होगा और नरम होगा एकदम, उसमें कोई मॉइस्चर नहीं होगा, थोड़ी सी हवा चलेगी सॉइल उड़ेगा। देखा ही है आपने, धूल जो उड़ती है वो धूल क्यों उड़ रही है? क्योंकि ऊपरी सतह पे है और वो काफ़ी कमज़ोर या काफ़ी नाजुक है, जिसकी वजह से वो उड़ रही है। अगर उसको भारी कर दिया जाए तो ये हो जाता है। और जब आप स्ट्रॉ डालते हैं तो उससे क्या होता है, मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता है स्ट्रॉ, और यही मॉइस्चर सॉइल में पास आउट होता है और इससे क्या होता है, सॉइल भारी हो जाता है, तो उसको आसानी से हम इरोजन नहीं होता है उसका, ठीक है। काउंटर बैरियर्स अलॉन्ग द कॉन्टोर्स आर मेड बाय ग्रोइंग ग्रास और बाय पुटिंग स्टोन्स टू हेल्प प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो ऐसे बैरियर्स होते हैं। देखो अभी यहाँ पे अपने बड़े बड़े पत्थर डाल दिए, या समझ लो ऐसे बड़े बड़े प्लांट्स या ट्रीज लगा दिए, तो जितना हम बैरियर्स क्रिएट करेंगे उतना ही सॉइल इरोजन कम होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है तो सॉइल को पकड़ के रखेंगी, जाने नहीं देंगी आगे, है ना। दे विल नॉट अलाउ द सॉइल टू फ्लो विथ वाटर और विंड, ठीक है, क्लियर है, ओके। रॉक डैम्स, रॉक्स आर प्लेस्ड वन अबव द अदर टू रेगुलेट एंड स्लो डाउन द स्पीड ऑफ वाटर। कोई मरीन ड्राइव गया है आप लोग में से? अरे कभी तो जाओ भाई साहब। तो मरीन ड्राइव में आप देखोगे समुंदर है, ऐसा समुंदर है और उसमें ऐसे बड़े बड़े भाई साहब पत्थर रखे हुए हैं, ऐसे बड़े बड़े, ठीक है, सी शोर के पास में। क्यों? ताकि ये समुंदर का पानी भाई साहब इधर ना आ जाए, ठीक है। तो ये बोल्डर्स क्या करते हैं, ये रॉक्स क्या करते हैं, समुंदर का जो फोर्स है उसको कट करते हैं, ठीक है। ये बड़े बड़े सीमेंट के बोल्डर्स हैं जो वहाँ पे रखे हुए। तो दीज आर नोन एज, दीज आर अ टाइप ऑफ अ रॉक डैम्स, ठीक है, आर प्लेस्ड वन अबव द अदर टू रेगुलेट द स्लो डाउन द स्पीड ऑफ वाटर। दिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग गली इरोजन एंड सॉइल लॉस। तो इससे भाई साहब सॉइल लॉस नहीं होता है। गली इरोजन क्या होता है, मतलब ये समझ लो यहाँ पे एक लैंड है और यहाँ पे भाई साहब सी आ रहा है, ठीक है, या समझ लो ये रिवर है और ये बहुत ज़ोर से जा रहा है, तो यहाँ के जो साइड के हैं ये पानी का जो स्पीड है वो इसको भाई साहब काटता रहेगा, ठीक है, इट विल रिड्यूस इन साइज, ठीक है। टेरेस फार्मिंग, इट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेरेसेस और फ्लैट स्टेप्स ऑन स्टीप स्लोप्स। तो अगर समझ लो कोई भाई साहब स्लोप है ऐसा और उस पर आपने ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है, देखो यहाँ से बहुत ज़ोर से पानी आएगा जब बरसात का मौसम होगा, तो जब पानी ज़ोर से जाएगा तो वो अपने साथ क्या कैरी करते हुए जाएगा, सॉइल को कैरी करते हुए जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसे टेरेस फार्मिंग कर दी तो क्या होगा, ये पानी आके यहाँ पे जम हो रहा है, ठीक है, फिर ये वाला पानी आके भाई साहब यहाँ पे जम हो रहा है, ऐसा टेरेस फार्मिंग। तो ये वाला पानी क्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, इसको अपन टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। इससे आपका सॉइल इरोजन बचेगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, हर लेयर पे वाटर की स्पीड को कम कर दे रहे हो, है ना। ये आया वाटर स्पीड में आ रहा था, जितना स्पीड में रहेगा उतना ज़्यादा सॉइल इरोजन होगा। अभी जैसे भाई साहब ऐसे हो गया तो वाटर की स्पीड कम हो गई, स्विमिंग पूल में चला गया भाई साहब, ठीक है। मतलब स्विमिंग पूल क्या, ये एकदम फ्लैट चीज़ है, फिर भाई साहब उसका धीरे धीरे नीचे जाएगा, अगर वो नीचे गया भी तो इससे क्या होगा, वाटर का स्पीड कम हो जाएगा, जिससे वो ज़्यादा सॉइल इरोजन नहीं करेगा। इस टाइप के फार्मिंग को अपन टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। ज़्यादा करके दार्जिलिंग में टी कल्टिवेशन वगैरह इस टाइप के फार्मिंग से ही होती है, ठीक है, ओके। इंटरक्रॉपिंग, वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन ऑल्टरनेट रोज एंड सोन एट डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। अलग अलग टाइम पे हम ऐसे ऑल्टरनेट रोज होते हैं, ठीक है। ये क्रॉप एक टाइप का ग्रो किया, दूसरे टाइप का क्रॉप ग्रो किया, यहाँ पे दूसरे टाइप का ग्रो, तो ऐसे ऑल्टरनेट अरेंजमेंट में क्या होता है, देखो एक ही क्रॉप अगर हम बहुत बड़े पैमाने पे उगाएंगे तो उसमें होगा क्या कि सॉइल वही क्रॉप उगाते उगाते थक जाएगा, ठीक है, रिप्लेनिश नहीं हो पाएगा। दूसरा कोई क्रॉप अगर उगाएंगे तो उसका रिक्वायरमेंट्स अलग होगा एंड सॉइल विल बी एबल टू रिप्लेनिश इटसेल्फ इन दैट टाइमिंग, ठीक है। Counter ploughing, land is plowed parallel to the counter of a hill slope. This makes a natural barrier for water to flow down the slope. तो भाई साहब एक नेचुरल, ये ऐसा ही टाइप का होता है टेरेस फार्मिंग की तरह। लैंड इज प्लाउड पैरेलल, तो ये आपका हिल स्लोप है, कोई समझ लो ये हिल स्लोप है और इस हिल स्लोप में ऐसा हिल से आ रहा है और यहाँ पे हमने क्रॉपिंग कर दी, ठीक है, हमने क्रॉपिंग कर दी। तो अभी क्या होगा भाई साहब, ये वाले पानी को अपन यूज़ कर लेंगे, है कि नहीं। इधर से सबने पानी को खींच लिया, तो पानी को अगर खींच लेंगे तो पानी का स्पीड कम हो जाएगा। जितना ज़्यादा पानी जाएगा उतना ज़्यादा स्पीड भी रहेगा। लेकिन पानी अगर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ नीचे जा रहा है, ठीक है, जितने भी आपके फील्ड्स हैं, तो ऑब्वियसली पानी का जो स्लोप है या जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, तो लेस ऑफ सॉइल इरोजन विल हैपन, दैट इज कॉल्ड काउंटर प्लॉइंग। शेल्टर बेल्ट्स,
ट्रीज आर प्लांटेड इन स्ट्रेट रोज टू चेक द मूवमेंट ऑफ विंड्स। तो आपके भाई साहब ट्रीज ऐसे बनाए जाते हैं ताकि जितने ट्रीज होंगे उतनी हवा कम आएगी। ये ट्रीज जो है तो रोकेंगे हवा को, क्योंकि हवा जितना चलेगा हवा से भाई साहब लैंड का सॉइल का इरोजन भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, ओके। सो ये शेल्टर बेल्ट्स हो जाते हैं। ओके ओके ओके। ओके अभी हम बात करेंगे, तो अभी तक हमने बात की कैसे लैंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कैसे लैंड रिसोर्सेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट। नाउ विल टॉक अबाउट वाटर रिसोर्सेज। सो वाटर डेफिनेटली इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ठीक है, द अर्थ इज ऑल्सो नोन एज द वाटर प्लैनेट। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स टू प्रिजर्व लाइफ। ठीक है, हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दस आवर अर्थ इज ऑल्सो नोन एज द वाटरी प्लैनेट। इसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, वाटरी प्लैनेट। वाटर इज एन इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। अबाउट 3/4 ऑफ द सर्फेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। 3/4 सरफेस भाई साहब वाटर से ही कवर्ड है। Therefore, our Earth is also known as the watery planet. Fresh accounts only 2.7% of total water of Earth. 70% of fresh water occurs as ice sheets and glaciers. ठीक है, तो ज़्यादा करके 70% आपका जो वाटर है, जो प्योर वाटर है, फ्रेश वाटर, ये आइस शीट्स और ग्लेशियर्स के फॉर्म में है। मतलब इसको आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये आइस शीट्स और ग्लेशियर्स जब मेल्ट होंगे तो उनसे रिवर्स बनेगा, उन रिवर्स का पानी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओनली 1% ऑफ टोटल फ्रेश वाटर इज अवेलेबल टू अस। पूरे जो भी आप यूज़ कर रहे हैं खाने पीने के लिए जो वाटर, जो फ्रेश वाटर है, वो सिर्फ पूरे वाटर का सिर्फ 1% है। 70% का सिर्फ 1% है। दैट इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। इसको अपन पोर्टेबल वाटर भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज पोर्टेबल वाटर। द परसेंटेज इज वेरी वेरी लेस। द वाटर साइकिल इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। अभी देखो वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है, इसके क्लाउड्स बनते हैं और क्लाउड से रेन होते हैं। तो ये वाटर साइकिल चलता ही रहेगा। दिस विल कीप ऑन हैपनिंग। ठीक है, द वाटर साइकिल इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब कूलिंग, एंड प्रेसिपिटेशन। ये जो बरसात गिरती है इसको अपन प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। द हीट ऑफ द सन इवेपोरेट्स द वाटर। सन से हीट आया, वाटर इवेपोरेट किया, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर फॉर्म हुआ। व्हेन द वाटर वेपर कूल डाउन इट कंडेंसेस। कंडेंसेस होगा मतलब ये पानी बनकर गिरेगा, मतलब बरसात बनकर गिरेगी, एंड फॉर्म्स क्लाउड्स। It is from clouds that the water precipitates in the form of rainfall, hail or snow. This process through which water keeps on changing its form and circulates between the oceans, atmosphere and land is called the water cycle. तो ये जो साइकिल चल रहा है, evaporate, cool down, फिर भाई साहब नीचे गिरा, फिर भाई साहब ऐसे चलता ही रहेगा। This is called the water cycle. ठीक है, water is used not only for drinking and household consumption but also in the process of industrial production. काफ़ी सारी चीज़ों में, इनफैक्ट हर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में वाटर की रिक्वायरमेंट है। अब जैसे समझ लो बिस्कुट जो आप खाते हैं, ठीक है, वो कैसे बनता होगा, वो मैदे से बनता है, लेकिन उसको भाई साहब फेंटने के लिए वाटर तो चाहिए ना। ठीक है, आइसक्रीम, बहुत सारी चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ों में आपका वाटर यूज़ होता है। द डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड वेस्ट, अनट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चरल केमिकल्स एंड ओवर यूज ऑफ वाटर हैज़ रिजल्टेड इन द डिटोरेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर। हम जो इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्रीज से जो गंदा पानी छोड़ रहे हैं, उससे भाई साहब वाटर की क्वालिटी दिन ब दिन गिरती जा रही है। ठीक है, plantation of trees and water harvesting helps in the conservation of water resources. Irrigation of crops through sprinklers and use of drip or trickle irrigation helps in conservation of water resources. तो इससे भाई साहब वाटर का लॉस कम होता है। स्प्रिंकल इरिगेशन मतलब समझते हैं ना, ऐसा भाई साहब धड़धड़ा के पानी छोड़ो आप खेतों में, उससे अच्छा जितना ज़रूरी है। ऐसे पाइप्स लगे होते हैं, देखो ऐसे पाइप्स लगे होते हैं और पाइप ऐसे घूम सकते हैं, इनकी मुंडी ऐसे घूम सकती है, तो स्प्रिंकल इरिगेशन होता है। इससे कम वाटर लगेगा और काफ़ी बार आप चला सकते हो उसको। अगर आपने एक नाली बना दिया, उसमें पानी छोड़ दिया भाई साहब, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन ये पानी पर्याप्त मात्रा में रूट्स तक भी पहुंचेगा और पानी कंजर्व भी रहेगा। ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन, ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन। बिल्कुल भी आदत नहीं है पढ़ने की, तुम्हारे शक्ल से ही लगता है भाई साहब तुम घर में आधा घंटा 10 मिनट भी नहीं पढ़ते हो, क्योंकि यहाँ तुम्हारी बोरियत इस बात को बयां कर रही है। ओके, तो आपका ड्रिप इरिगेशन हो गया, ट्रिकल इरिगेशन हेल्प्स इन द कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो ये दो फवारे से जो पानी निकलता है वो काफ़ी कम होता है। आप ऐसा समझ लो कि आप अगर बाल्टी से नहा रहे होंगे, ठीक है, और फवारे से नहा रहे होंगे, आपके फवारे में काफ़ी कम पानी यूज़ करेंगे आप। ठीक है, आप चाहे तो करके देख लेना इसको। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जब आप फवारे को यूज़ करते हैं, जब आप एक्चुअली में इसको यूज़ करें, आपको काफ़ी कम पानी यूज़ होगा। वैसा ही वैसा खेतों में भी है। ठीक है, आप धड़धड़ा के उसमें पानी छोड़ रहे हैं नाली बनाकर, लेकिन पानी ठीक जगह पे पहुंच भी नहीं रहा और काफ़ी सारा लॉस भी हो रहा है।
लेकिन अगर ऐसा स्प्रिंकलर इरिगेशन करेंगे या ड्रिप इरिगेशन करेंगे, आप काफ़ी कम पानी में काफ़ी बड़ी खेती को संभाल सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स दैट वी ऑल नीड टू नो। तो आपका देखो ये वाटर साइकिल है, द बायोस्फीयर। ये वाटर साइकिल मतलब कैसा, देखो ये ऊपर गया वाटर वेपर, इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, फिर से भाई साहब ये होकर इधर आया, फिर ऐसे चलता ही जाएगा। द बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर होता है मतलब पूरा लैंड, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर होता है मतलब पूरा वाटर इंक्लूडिंग वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, एंड एटमॉस्फेयर, ये सारी तमाम चीजें, ठीक है। सो द बायोस्फीयर इन सब से बना हुआ है, किस किस से, लिथोस्फीयर, hydrosphere and atmosphere. So the biosphere is made up of lithosphere, that is land, hydrosphere entire water मतलब land with the water मतलब oceans में, seas में, rivers में, lakes में, plus the water vapor in atmosphere, ये सारा water, ठीक है, and the atmosphere, इन तीनों चीज़ों से आपका biosphere बना है भाई साहब, ठीक है। The ecosystem is an interdependent community of living and non-living organisms in the same area. तो देखो living और non living दोनों भी ज़रूरत है। जैसे water आपको ज़रूरत है लेकिन water non living है, ठीक है। आपको प्लांट जरूरत है, लिविंग है, एनिमल जरूरत है, लिविंग है, ठीक है। सो हमको सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। एयर नॉन लिविंग है, ठीक है, वाटर नॉन लिविंग है, लैंड नॉन लिविंग है, लेकिन हमको जरूरत है, ठीक है। सो इकोसिस्टम क्या होता है किसी भी जगह का, ये इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से डिपेंडेंट रहेगा। लिविंग और नॉन लिविंग में कॉन्स्टेंट रिलेशनशिप रहेगा। द रिलेशनशिप्स बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द इंटरैक्शंस विद लिविंग एंड नॉन लिविंग सराउंडिंग्स। वेजिटेशन इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स एज इट प्रोवाइड्स अर्थ विद, क्या क्या वेजिटेशन प्रोवाइड करता है, टिम्बर, टिम्बर मतलब हो गया भाई साहब आपका वुड, ठीक है, फ्रूट्स, नट्स, फॉडर, फ्यूल, ऑयल एक्सेट्रा, मेडिसिनल प्लांट्स एंड पेपर। इट हेल्प्स इन कंजर्विंग सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। तो इससे भाई साहब सॉइल और वाटर रिसोर्सेज कंजर्व रहते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स इन कंजर्विंग सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके क्या तू ऐसे सवाल पूछने के लिए पूछ रहा है क्या? फॉडर मीन्स जो आप कैटल को खिलाते हैं। ये फॉडर इज नॉट समथिंग दैट इज न्यू, यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस। थोड़ा सवाल पूछने के पहले ना सेंस रखा करो। ओके, फ्रूट्स, नट्स, फॉडर, फ्यूल, ऑयल, मेडिसिनल प्लांट्स एंड पेपर। इट हेल्प्स इन कंजर्विंग सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। वेरियस एनिमल्स, बर्ड्स, मतलब मुंह में आ गया कुछ भी सवाल वैसे नहीं पूछना है भाई साहब, थोड़ा दिमाग लगा के सवाल पूछो ना। ये मैं यहाँ डिक्शनरी नहीं हूँ कि आपको वर्ड्स का मीनिंग समझाऊँ। फॉडर तो इट्स समथिंग दैट वी ऑल हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस एज वेल। फॉडर मतलब जो कैटल को खिलाते हैं आप। वेरियस एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्वेटिक लाइफ आर अ पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है। एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मीट, मिल्क, हाइड्स। तो आप देख रहे हैं कैसे आपका, अब पूछोगे हाइड्स क्या होता है ना, पूछो क्या हाइड्स क्या होता है? हाइड्स इज बेसिकली स्किन। तो आपके लेदर से जो चीजें बनती हैं वो एनिमल स्किन से बनती हैं, ठीक है। ओके, सो आपके बहुत सारी चीजें हैं जो हमको प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, बर्ड्स, आपके एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्वेटिक लाइफ। एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मीट, मिल्क, हाइड्स एक्सेट्रा, वुल। इंसेक्ट्स हेल्प इन द पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स। तो पॉलिनेशन, अभी पॉलिनेशन क्या होता है, मतलब यहाँ पे ज्योग्राफी नहीं, मैं सब कुछ पढ़ाऊँ आपको, है ना। पॉलिनेशन इज ये ऐसा ना थोड़ा, मतलब एज अ स्टूडेंट आप जो सवाल पूछना चाहिए ना वो नहीं पूछ रहे हैं, पूछ लेते हैं भाई साहब, ओ ये क्या दिख रहा है, दिस इज बैड स्टूडेंट एथिक्स। मैं बोलूँगा आप सवाल पूछो वो जो सेंस बनाए। ओके, तो यहाँ पे आपका पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स क्या होता है, जैसे एक इंसेक्ट दूसरे इंसेक्ट पे जब बैठता है तो आपके पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं और इससे फ्लावर का फर्टिलाइजेशन होता है। आइंस्टाइन ने बोला था कि अगर दुनिया में सारे मधुमक्खी गायब हो जाएं या मार दिए जाएं तो अगले 4 सालों में ह्यूमन स्पीशीज मर जाएगी, ह्यूमन स्पीशीज विल नॉट एबल टू सर्वाइव। और इन्होंने एक्चुअली कैलकुलेट करके दिखाया था कि इफ़ इन 4 years द एंटायर ह्यूमन स्पीशीज इज गोइंग टू गो एक्सटिंक्ट। क्योंकि अगर बीज मर जाएंगे तो पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा तो हमारा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स कुछ भी नहीं बनेगा, एंड इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू सर्वाइव ओनली ऑन मीट, ठीक है। तो ये हो जाएगा। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, मेनी बर्ड्स फीड ऑन डेड एनिमल्स एंड एक्ट एज स्कैवेंजर्स। तो बहुत सारे बर्ड्स हैं जो स्कैवेंजर्स भी होते हैं, जैसे वल्चर आपका स्कैवेंजर है, ठीक है, डेड एनिमल्स पे जो फीड करता हो, ठीक है। ओके, तो अगर आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर 2 important factors which determine the growth and nature of natural vegetation. Forest, grasslands and scrubs are some important types of natural vegetation. Natural vegetation मतलब होता क्या है, जो आपको नेचर से मिले, ठीक है। Dense forest with huge trees thrive in areas of heavy rainfall. As the rainfall decreases, trees become short and less dense.
जैसे जैसे आप जाओगे, जैसे समझो अगर आप अमेजन फॉरेस्ट में हो तो आपको बहुत बड़े बड़े ट्रीज दिखेंगे, लेकिन राजस्थान के किसी डेजर्ट में चले जाओगे तो इतने छोटे छोटे ट्रीज होंगे, और भी छोटे हो जाएंगे। जैसे जैसे भाई साहब आपका रेनफॉल आपका कम होता जाएगा, वैसे वैसे ट्रीज का साइज भी कम होता जाएगा, क्योंकि उतने पानी में ही अभी गुजर बसर करनी है। ओके, थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स, तो आपने देखा रहेगा कांटेदार प्लांट होते हैं, कैक्टस वगैरह, ठीक है। दे ग्रो इन रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल। दीज प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स विच गो डीप इनटू द अर्थ इन सर्च ऑफ वाटर। तो इनकी रूट्स बहुत नीचे तक जाना पड़ता है, तब जाकर थोड़ा बहुत पानी मिलता है, ठीक है। दीज लीव देयर लीव्स आर आल्सो वैक्सी एंड थॉर्नी टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। तो इनके लीव्स जो है वो, ये लीव है भाई साहब, ये लीव किस में मॉडिफाई हो जाता है, थॉर्न्स में, ताकि कम लॉस हो वाटर का। जितने बड़े लीव्स होंगे उतना ज़्यादा वाटर लॉस होगा ट्रांसपिरेशन से। There are two broad categories of forest, evergreen and deciduous. Trees in the evergreen forest do not shed their leaves at the same time, thus they always appear green. Trees in the deciduous forest shed their leaves in a particular season. तो deciduous तो अलग अलग टाइम पे plants shed their leaves. Okay. Conservation of natural and wildlife. It is important to conserve forest. Destruction of forest leads to the life loss of wildlife also. जैसे जैसे भाई साहब आप फॉरेस्ट को खत्म करते जाएंगे, वाइल्ड लाइफ भी खत्म होता जाएगा। Deforestation, soil erosion, forest fires, landslides have resulted in the degradation of the environment. Poaching of animals for their skin. Poaching मतलब क्या होता है? सलमान खान को ये वो चला था, देखो उनके ऊपर केस चला था, ठीक है। नहीं, पोचिंग मतलब वुल निकालना नहीं होता है। पोचिंग मतलब शौक किया तौर पे आप हंटिंग करना, या समझ लो हाथी के दांत तो हाथी को मारना, ठीक है। टाइगर स्किन के लिए टाइगर को मारना, तो इसको बोलते हैं पोचिंग। इलीगल हंटिंग को पोचिंग बोलते हैं अपन, ठीक है। इलीगल हंटिंग बेसिकली। पोचिंग ऑफ एनिमल्स फॉर देयर स्किन, हॉर्न्स, ठीक है, हॉर्न्स के लिए रिजल्टेड इन शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ स्पीशीज। तो काफ़ी सारे लोग मारे गए, काफ़ी सारे एनिमल्स मारे गए। ब्रिटिश के टाइम पे एक ही गवर्नर जनरल ने 400 टाइगर का शिकार किया था। 400 मतलब आप समझिए तब कितनी टाइगर की आबादी थी हमारे देश में। आज की तारीख में हम स्ट्रगल कर रहे हैं टाइगर के लिए, 2000 2500 इसमें हमारा नंबर्स चल रहा है। एक इंसान ने 400 टाइगर्स को मारा था। तो आप सोचिए किस तरह से एक पूरी स्पीशी जो है तो हमारे इंटरवेंशन की वजह से ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कागार पे है, ठीक है। कुछ कुछ लोग जैसे बोलते हैं भाई साहब हाथी के दांत बड़े लकी होते हैं, ठीक है। अरे भाई साहब इतना बड़ा हाथी है, उसको एक आदमी मार मार के चला रहा है, उसका लक का खुद का लक देखो, और तुम बोल रहे हो कि भाई साहब हाथी का दांत अगर हम लेंगे तो लक हमको आएगा। बेकार की बातें हैं। और जिसके लिए काफ़ी हाथियों को मारा जाता है, इलीगली हंटिंग की जाती है, ठीक है। शेर के दांत, बचा शेर के दांत का लॉकेट बनाते हैं लोग, मतलब ये फालतू की चीज़ें हैं, ये आपके मिथ्स हैं ये, ठीक है। क्यों किसी प्राणी का लहूलुहान करके उसके बाद आप शौकिया तौर पे एक चीज़ लगाएंगे तो आपको लक आ जाएगा, मतलब नेचर आप पे मेहरबान हो जाएगी, तो फिर ऐसा नेचर ही क्या, ठीक है। सो दीज आर बैड मिथ्स दैट वी फॉलो। और ये इनके स्किन, आप लोग पहले के ज़माने में अगर देखोगे तो बहुत सारे घरों में ऐसे टाइगर स्किन का बना रहता था। आज की तारीख में वो इलीगल है, ठीक है। टाइगर स्किन का अगर आपने देखा रहेगा, वो देखो भाई साहब मेरे दादाजी हंटिंग के लिए गए थे, अरे बेकार में निहत्ते शेर को मार डाला भाई साहब, और यहाँ पे उसका नुमाइश कर रहे हो। दीज आर थिंग्स, ठीक है। ओके, द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश मेनी नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी चीज़ें सेटअप की है, ठीक है। मेरे घर पे वो चिड़ियों को खिलाने के लिए एक वो होता है ना, तो वो रहता है, तो चिड़िया आती हैं खाती है जाती हैं, तो उसका जो वो होता है फॉडर, जिसको मतलब खाना जो होता है, वो खाना यहाँ पे मिलता है, ठीक है। एक जगह एक दुकान में मिलता है। तो मैं ऐसे ही गया, तो मतलब तो मैंने ऐसे पूछा उससे, तोते वगैरह भी पालते हो क्या तुम? वो नहीं, तोता पालना इलीगल है, तोते को पिंजरे में कैद रखना इलीगल है। अगर किसी गवर्नमेंट के इंसान ने आपको देख लिया तो फ़ाइन लग जाएगा। मैं खाना रख सकता हूँ, खाना आप खिला सकते हैं, चारा खिला सकते हैं, कोई भी आकर खा सकता है, लेकिन तो गवर्नमेंट ने अपनी व्यवस्था की है। ये हम हैं जो हम इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, ठीक है। हम हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानते। अरे रुकना। Many programs such as One Mahotsav are also encouraged at the school and community levels to make people aware of the advantages of planting trees. काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे आप प्लांटिंग ट्रीज, मतलब कोई बड़ा समारोह चल रहा है, सब लोग ट्रीज प्लांट कर रहे हैं, तो उसमें प्लांट ट्रीज कर रहे हैं। द इंडियन गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड द किलिंग ऑफ टाइगर्स, लायंस, डियर, इंडियन बस्टर्ड एंड पिकॉक्स एज इलीगल। ये सारी चीज़ों का शिकार करते हुए अगर कोई पाया गया तो उसके ऊपर केस चलेगा, ठीक है।
और सज़ा हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, ठीक है, पनिशेबल ऑफेंस है इन चीज़ों का शिकार करना, ठीक है। ओके, सो दैट वाज अबाउट द चैप्टर जहाँ पे हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमारा जीवन नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ा हुआ है, ठीक है, हाउ इट इज कनेक्टेड, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम पीपलम। हाँ, छोटा सा ही चैप्टर है ये वाला थर्ड वाला स्विच है ना, थर्ड वाला स्विच, थैंक यू। ओके पीपलम, सो वी वर डूइंग येस्टरडे आई डिफेक्ट्स। तो देखो अपना नियर पॉइंट विजन कितना है, व्हाट इज द नियर पॉइंट विजन, 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट कितना है अपना, इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये याद रखिए, नॉर्मल आई के लिए अपना नियर पॉइंट मतलब 25 सेंटीमीटर तक आप सब कुछ ठीक ठाक देखने चाहिए, और अगर डिफेक्ट होगा तो उसमें प्रॉब्लम होगा, और अगर फार पॉइंट की बात करें तो इन्फिनिटी है, ठीक है। ओके, तो नॉर्मल आई, ये आपका नॉर्मल आई है, लेट्स से देखिए नॉर्मल आई में कोई भी ऑब्जेक्ट का बराबर इमेज रेटिना पे बनेगा, ये यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है। सिर्फ अगर ब्लाइंड स्पॉट पे बना तो आप नहीं देख पाएंगे, बाकी रेटिना में कहीं पे भी बनेगा तो ऑप्टिक नर्व से भाई साहब ये मैसेज ब्रेन को जाएगा एंड यू विल बी एबल टू सी दैट थिंग, ठीक है। ओके, सो सारी चीज़ों का भाई साहब इमेज कहाँ पे बनता है, अपने रेटिना पे बनता है, एवरीथिंग, ठीक है, वट एवर वी आर ट्राइंग टू सी। ओके, द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। आई डिफेक्ट्स, दो टाइप के आई डिफेक्ट्स होते हैं आपके, जैसे मैंने कल बताया था आपको, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। इसको याद रखने का सिंपल तरीका क्या है, दोनों में से शॉर्ट वर्ड कौन सा है, मायोपिया, तो इसको बोलेंगे शॉर्ट साइटेडनेस, और लॉन्ग वर्ड कौन सा है, हाइपरमेट्रोपिया, तो ये हो गया आपका लॉन्ग साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब क्या, जो मतलब पास की चीज़ें अच्छे से दिखे, दूर की चीज़ें ना दिखे, और लॉन्ग साइटेडनेस मतलब दूर की चीज़ें अच्छे से दिखे और पास की चीज़ें ना दिखें, ठीक है। आर बी क्लियर, मायोपिया नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। ओके, तो आगे अगर देखेंगे मायोपिया, जिसको अपन नियर साइटेडनेस बोलते हैं या शॉर्ट साइटेडनेस बोलेंगे, ठीक है। ये शॉर्ट साइटेडनेस ज़्यादा याद रखिए, मायोपिया में ज़्यादा काम का होगा क्योंकि शॉर्ट वर्ड है ये बेसिकली, ठीक है। तो फार अवे ऑब्जेक्ट है, इसको आप अपने अच्छे से देख पाएंगे, तो एकदम डिस्टिंक्टली इसको देख पाएंगे। जो नियर बाई ऑब्जेक्ट है वो आपको ठीक से नहीं दिखेगा, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं मायोपिया, ठीक है। सो देयर इज अ डिफेक्ट ऑफ द आई बिकॉज ऑफ विच यू आर नॉट एबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, बट यू आर एबल टू सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्रीटी क्लियरली, ठीक है। ओके, सो अगर समझ लो ये आपका आई है, ठीक है, यू आर ट्राइंग टू सी दिस, इसका जो है तो आपका जो पेशेंट होगा, मतलब मायोपिया का जो पेशेंट होगा, उसके लिए आई साइड ऐसा रहेगा, देखो ब्लरी है, समझ में आ रहा है कुछ लिखा हुआ है, शायद कुछ अल्फ़ाबेट समझ में भी आ जाएं, लेकिन ब्लरी अपीयरेंस रहेगा, ठीक से नहीं दिखेगा, ठीक है, ठीक से नहीं दिखेगा। ओके, सो मायोपिया इज नियर साइटेडनेस। तो एक नॉर्मल आई है, देखिए नॉर्मल आई के लिए आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है, 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर से और किसी चीज़ को अगर आप पास में लाओगे तो शायद आपकी आंखें उसको ठीक से इमेज ना बना पाएँ, लेकिन 25 सेंटीमीटर तक तो ठीक से इमेज बनना चाहिए किसी भी नॉर्मल आई के लिए, ठीक है। ओके, सो फॉर अ नॉर्मल आई, डिफेक्टेड आई में क्या हो जाएगा, दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू इलॉन्गेशन ऑफ द आई बॉल। इसमें क्या हुआ है, आई बॉल का इलॉन्गेशन हुआ है, ठीक है, आई बॉल का भाई साहब साइज बढ़ गया है। द लाइट रेज फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अराइविंग एट द आई लेंस गेट कन्वर्ज एट अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो यहाँ पे कहाँ पे कन्वर्ज होना चाहिए भाई साहब, यहाँ पे कन्वर्ज होना चाहिए भाई साहब, टाइम क्या है, ओके, यहाँ पे कन्वर्ज होना चाहिए लेकिन यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। सो द लाइट रेज फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट गेट कन्वर्ज बियॉन्ड, मतलब पहले ही कन्वर्ज हो जाएगा। तो मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब क्या, आप नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पा रहे हैं, और हाइपरमेट्रोपिया मतलब लॉन्ग साइटेडनेस, मतलब फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, क्यों यहाँ नहीं बैठ सकते, ठीक है, फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स को आप क्लियरली देख पाएंगे, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो मायोपिया में भाई साहब क्या हो रहा है, देखो ये आप मायोपिया मतलब हो गया आपका शॉर्ट साइटेडनेस, बिकॉज ऑफ विच यू आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली व्हेन दे आर फार ऑफ, हाउएवर नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को आप ठीक से नहीं देख पा रहे, ठीक है। तो फार ऑफ ऑब्जेक्ट का देखो कैसे हो रहा है ये, ठीक है, फार सॉरी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को आप देख पा रहे हैं, नियर साइटेडनेस मतलब यू आर एबल टू सी, यू आर एबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, you are able to see nearby objects clearly, however not able to see far off objects clearly. You are able to see nearby objects clearly, however not able to see
फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो जो दूर की चीजें हैं वो आपको नहीं दिखेंगी ठीक से, ठीक है। यू आर एबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट नॉट फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो नियर, तो अगर दूर का कोई चीज है उसका भाई साहब क्या हो रहा है, देखो प्रॉब्लम तुम्हारा, तुम सारी चीजों को तब तक देख सकते हो जब तक उसके इमेज कहाँ पे बने, रेटिना पे बने। अगर रेटिना के बाद बना या रेटिना के पहले बना तो उसका इमेज तुम नहीं देख पाओगे, ठीक है। ये एक फार ऑफ ऑब्जेक्ट है, उससे लाइट रेज आ रहे हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल बी कन्वर्जिंग ऑन द रेटिना, दे शुड बी कन्वर्जिंग ऑन द रेटिना फॉर यू टू सी इट प्रॉपर्ली। हाउएवर इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, दे आर कन्वर्जिंग इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, ये रेटिना के पहले ही कन्वर्ज हो जा रहे हैं। क्या ये समझ में आ रहा है। अभी यहाँ पे अगर कन्वर्ज हो रहा है तो भाई साहब आपका ये जो है ये आपका ठीक से दिखेगा ही नहीं। मतलब देखो इस इंसान को तुम देखने की कोशिश कर रहे हो जो बहुत दूर है, इस इंसान का हमेशा उल्टा इमेज बनेगा भाई साहब, रेटिना पे हमेशा इन्वर्टेड इमेज ही बनेगा, आपका ब्रेन उसको सीधा करता है, ठीक है। तो इस इंसान की उल्टी तस्वीर बनेगी, लेकिन देखो कैसे धुंधली तस्वीर बनी है, ठीक है। एक ऐसा तस्वीर बना है, देखो इट्स हार्डली, यू आर नॉट एबल टू सी इट क्लियरली। जब आप किसी चीज को क्लियरली नहीं देखते तो ऐसी तस्वीर बनती है उसकी, है ना, ठीक है। ओके, सो द लाइट रेज फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अराइविंग एट द आई लेंस गेट कन्वर्ज एट अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो रेटिना के पहले ही कन्वर्ज हो जा रहा है, इट इज कन्वर्जिंग इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ओके, सो नाउ करेक्शन क्या करेंगे, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्केव और डाइवर्जिंग लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट। तो दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय, तो यहाँ पे भाई साहब ये आया, आपने क्या यूज किया यहाँ पे भाई साहब, कॉन्केव लेंस, ठीक है। मायोपिया, ठीक है, इसमें आपने क्या यूज किया भाई साहब, कॉन्केव लेंस को यूज किया है, ठीक है। नियर साइटेडनेस इज करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस। अभी कॉन्केव लेंस में क्या होगा, देखो डाइवर्जिंग लेंस है, ये रे ऑफ लाइट आ रहा है, ये क्या करेगा, इसको थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा। जैसे इसको डाइवर्ज कर देगा भाई साहब, ये यहाँ पे बराबर इस रेटिना पे इमेज फॉर्म करेगा। इसके पहले ये रेटिना के पहले दम तोड़ा था ना भाई साहब यहाँ पे, अब क्योंकि इसका विड्थ बढ़ गया है तो अब ये रेटिना पे डायरेक्टली कन्वर्ट होगा, मतलब इस इंसान का प्रॉपर इमेज आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है। सो व्हाट यू हैव डन इज, इन ऑर्डर टू करेक्ट मायोपिया, द टाइप ऑफ लेंस दैट यू आर यूजिंग इज बेसिकली अ कॉन्केव लेंस which makes the image of a distant object fall directly on the retina so that you can see it clearly, ठीक है। Now what has happened, you are using a concave lens because of which the rays are getting diverged। concave lens मतलब diverge, पहले ऐसे आ रहे थे रेस और टुप पहले ही दम तोड़ रहे, तो इसको क्या कर दिया हमने, थोड़ा सा इसका डिफरेंस बढ़ा दिया by using concave lens। अभी ये पीछे जाकर कन्वर्ज हो रहे हैं। क्या ये समझ में आ रहा है। पहले क्या हो रहा था भाई साहब, ये रेज ऐसे आ रहे हैं, ये आईज पे आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे दम तोड़ रहे हैं भाई साहब, तो आपको भाई साहब ब्लरी इमेज दिख रहा था। लेकिन अभी इसके डिस्टेंस को, इसके डिफरेंस को आपने बढ़ा दिया तो ये और आगे जाकर दम तोड़ेंगे रेटिना पे फाइनली, एंड यू विल बी एबल टू गेट अ क्लियर पिक्चर। सो मायोपिया इज अ डिफेक्ट ऑफ नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस इन विच यू कैन सी द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड एट द नियर पॉइंट ऑफ द आई क्लियरली, हाउएवर यू कैन नॉट सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। दूर की चीजें आपको नहीं दिखती हैं, लेकिन नियर साइटेडनेस मतलब आपका शॉर्ट साइट जो है वो शार्प है लेकिन दूर का आपको नहीं दिख रहा है ठीक से। तो आपने क्या लेंस यूज किया है, कॉन्केव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस, बिकॉज ऑफ विच नाउ द इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स भाई साहब क्लियरली दिखता है किसमें, आपके मायोपिया में भाई साहब नियर बाई ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होंगे आपके वो अनक्लियर होंगे। नियर बाई ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली, however far off objects cannot be seen clearly। far off objects को अपन देख नहीं सकते हैं, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूं, ठीक है। फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम नहीं देख सकते हैं। ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नियर पॉइंट है देखो, ठीक है, फार पॉइंट है, तो फार पॉइंट में क्या होता है, हर तो एक नॉर्मल आई का फार पॉइंट क्या होता है, हाँ नहीं, हाँ इंफिनिटी, ठीक है। तो इसका मतलब मायोपिक आई का इंफिनिटी से कम होगा, मतलब यहां पे समझ लो इसका फार पॉइंट है, मतलब यहां तक वो ठीक से देख सकता है। क्या ये समझ में आ रहा है। एक नॉर्मल आई का, इसको समझो, फार पॉइंट क्या होता है, इंफिनिटी। एक मायोपिक आई का इंफिनिटी से कम होगा ना, उसका फार पॉइंट इंफिनिटी नहीं होगा, उसका इंफिनिटी से कम होगा, यहां तक वो ठीक से देख पा रहा है, मतलब बहुत दूर की चीज। इससे ज्यादा दूर हो गया तो नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो फार पॉइंट से कम होगा मतलब इंफिनिटी से कम होगा, तो ये समझ लीजिए फार पॉइंट है एक मायोपिक आई का। इसका बराबर जब तक बनेगा तब तक ये बनेगा, अगर इंसान इससे दूर चला गया तो भाई साहब ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट यहाँ पे दम तोड़ देंगे, ठीक है। दे विल कन्वर्ज बिफोर द रेटिना बिकॉज ऑफ विच यू विल नॉट बी एबल टू सी, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। मैकेनिज्म क्या हो रहा है,
आपका भाई साहब इन्फिनिटी होना चाहिए फार पॉइंट, लेकिन अगर मायोपिक आई है तो इन्फिनिटी नहीं होगा, इन्फिनिटी से क्लोजर हो जाएगा, इन्फिनिटी से क्लोजर है ये, ठीक है। ये इसका होगा अलग अलग आईज का अलग अलग फार ऑफ पॉइंट होगा, जहां से अगर इमेज बनेगा तो इमेज भाई साहब रेटिना पे बनेगा, लेकिन इससे दूर अगर ये चला गया तो इमेज रेटिना पे नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्लियर है भाई साहब, नियर बाई ऑब्जेक्ट्स आप क्लियरली देख सकते हैं, फार अवे ऑब्जेक्ट्स को आप अनक्लियरली देखेंगे, ठीक है। द लाइट रेज फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट गेट कन्वर्ज एट ए पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो भाई साहब कहां पे कन्वर्ज हो जाते हैं? इन फ्रंट ऑफ द रेटिना में कन्वर्ज हो जाते हैं, मायोपिया में, ठीक है। दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, आई बॉल भाई साहब बड़ा हो गया है, ठीक है। एक्सेसिव कर्वेचर ऑन द कॉर्निया, भाई कॉर्निया पार्ट में थोड़ा सा कर्वेचर ज्यादा है, ठीक है। इसकी वजह से कोई बैक्टीरियल या वायरल डिजीज नहीं है ये, कोई मतलब कंटेजियस डिजीज भी नहीं, इनफैक्ट डिजीज ही नहीं है, इट इज नॉट अ डिजीज, इट्स जस्ट द अरेंजमेंट ऑफ द लेंस। आपका जो लेंस का अरेंजमेंट है वो थोड़ा उबड़ खाबड़ है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। विच कैन बी इजीली करेक्टेड। इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट, मायोपिया के बारे में, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक क्विक एवरीवन।